Okay, fine. Uh, so what is the volume of cylinder? Volume of Cylinder. cylinder. Yes. Okay. Yes, sir. So the volume of cylinder is pi r square. Sorry, pi, not pi r square. Sorry, I'm really sorry. Mm-hmm. Sorry, I missed it. Yes, so the volume is just a second. Yeah, so it's into height into pi into r square means height r square, height pi r square, h pi r square. Or you can also say pi r square h, right? Yeah. ओके दैट्स ग्रेट ओके हम अभी ये वाला टॉपिक फिनिश करने के बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक्स वगैरह में मूव करेंगे बिकॉज दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू ओके नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोन डू यू नो व्हाट इज कोन बेसिकली Yes, sir. व्हाट So it has one flat surface at the top, a circle flat surface at the top, which isn't closed, and there's a actually turned bottom, turned it keep वो turned bottom होती है उसकी और एक point पे जाके end करता है, basically ice cream cones. okay right okay so I will just show you one image and I will make sure so देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ okay so can you see this image Yes, sir. okay so this image is known as cone what we say it cone okay Half into 1/3 pi r नहीं अभी square फॉर्मूला है. पे अभी One फॉर्मूला by पे three pi अभी r square अभी is फॉर्मूला पे okay. मत जाओ अभी फॉर्मूला पे मत जाओ okay so what about the figure what about the figure Hello. yeah can you hear me Hello. yes can you hear me Hello. Ashish can you hear me Hear you? yeah I can hear you can you hear me Oh yeah, I can hear okay you. fine I'm asking in real life what what you can see in the cone real life पहले शेप पे हम बात करते हैं Mostly, commonly we see ice cream cones as a cone, आइसक्रीम and देखा है right and because these are important for you so you should know about these things some party caps. party caps like birthday caps Yeah, right okay yeah. any other example And any other no, sir, I don't remember any other. okay you don't remember I will show you one more image and most probably you will remember it कुछ देख रहे हो इमेज में Traffic cone. या ट्रैफिक कोन तो बेसिकली अगर ऊपर हम देखें तो ऊपर ये कोनिकल नहीं है थोड़ा कट हो गया बट ये इस तरह से कोनिकल बना दे हम सो इट विल बी लुक्स लाइक अ ट्रैफिक कोन आल्सो ये तो बस लोगों ने बैठने के लिए बना लिया है राइट but it's basically what traffic cone also you can say so these are the examples of the cone correct Yes, so sir. by looking the example what you can find हमें एक चीज दिखती है कि एक तो नीचे में बेस मिला हमें right Yes, sir. so base is looks like what basically I'm not talking about the traffic cone I'm talking about the normal cone normal this cone what is the base here The base looks like a circle, a flat circle. right a flat circle correct so here we have if I shade this part so this is what this is a circular part and we can call it as a circle कोई problem इसमें No, sir. okay fine okay give me a moment Sure, sir, sure. okay
ओके फाइन। दूसरी चीज इसमें क्या दिख रही है? ओके सर, दूसरी चीज इसमें दिख रही है एक कर्व्ड सरफेस, एक कर्व टॉप सरफेस। बेसिकली एक सिलेंडर का टॉप जो है उसको एक अजीब सी शेप में रोल कर दिया, अंदर करके रोल कर दिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो अगर आप देखो कि हम दूसरी तरफ से देखें अगर, तो फ्रंट फेस से, तो आपको ये एक लाइन बनती नहीं है, बट इट्स लुक्स लाइक अ लाइन आल्सो, राइट? इन रियलिटी इट्स डज नॉट अ लाइन। अगर आप इन रियल पिक्चर में देखो, क्या ये फ्रंट फेस से अगर हम देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे एक लाइन बन तो रही है, बट दैट इज नॉट अ लाइन। ये फ्रंट फेस होने के कारण हमें लाइन दिख रहा है, बट इट्स एक्चुअली व्हाट, इट्स अ सर्कुलर पार्ट, राइट? यस सर। सो याद रखना, इस ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है इन द रेड कलर, दिस इज नोन एज स्लैंट हाइट। दिस इज नोन एज व्हाट? स्लैंट हाइट। इसको स्लैंट, इसको हाइट नहीं बोलते, इसको स्लैंट हाइट, झुका हुआ हाइट। ओके, स्लैंट हाइट। ओके यस। और इसमें एक हाइट आप देख रहे होगे, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट। height. So basically this is known as the actual height of the cone. Okay? ओके सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। अच्छा, अब मैं ब्लैक पार्ट से शेड कर रहा हूं, ओके सर। that is called what? That is called the curved surface area, right? ओके सर। Okay. अभी कुछ नोट मत करना, मैं बताऊंगा ओके अभी। सर। ओके अब सर। सबसे पहले काम करो आप, सबसे पहले कोन का फिगर बना लो, रफ फिगर। रफ फिगर। ओके। यस। बना लिया सर। ओके, बना लिया आपने? ओके। हाँ जी सर। अब बात करते हैं वॉल्यूम के लिए मैंने क्या पढ़ाया था आपको। Volume is बेस the एरिया इनटू, capacity inside. Volume is the capacity of the object. एंड फॉर्मूला निकालने के लिए क्या क्या रूल बताया था मैंने? Formula बेस एरिया इनटू हाइट, करेक्ट? base into height, right? ओके। लेकिन इस कोण में हाइट हम कैसे लेते हैं? अगर ये हाइट देखो, अगर ये हाइट ऐसे रहता, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, ये हाइट स्ट्रेट ऐसे चला जाता और ये भी हाइट स्ट्रेट ऐसे चला जाता, देन वी कैन कंसीडर द हाइट प्रॉपरली। बट क्या यहाँ पे हाइट, जब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो पोर्शन हमारा घट रहा है या बढ़ रहा है? सर घट रहा है। घट रहा है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब एक चीज और भी है, कैपेसिटी, करेक्ट? यस अब सर। बात आई, प्रॉब्लम क्या आ गई लोगों के सामने कि जी हमने तो पढ़ाया था कि बेस एरिया टाइम्स हाइट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा वॉल्यूम, राइट? तो बेस एरिया तो जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। क्या है ये? 1/3 सॉरी पाई आर स्क्वायर है सर्कल का, राइट? हाँ जी सर। लेकिन हाइट में क्या, हाइट इज कमिंग एग्जैक्टली एच। तो ये लोगों के सामने प्रॉब्लम आ गई इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए, इसकी प्रॉब्लम आ गई वॉल्यूम निकालने के लिए। तो लोगों ने क्या किया मालूम है आपको? क्या किया सर? नो, डू यू नो इट और नॉट? एनी आइडिया? नो। नो। लोगों ने एक उपाय निकाला इसका फॉर्मूला निकालने के लिए। क्या, मैं बताता हूं अभी। कैन यू सी दिस? यस सर। लोगों ने क्या किया, एक कोण लिया, एक कोण लिया, व्हाट सर? कोण कोण, कैन यू सी दैट? यस सर। एंड एक सिलेंडर लिया, ओके। ओके? यस अब सर। सिलेंडर की भी हाइट उतनी ही ली जितनी कोण की हाइट है, ओके? एंड द बेस is taken as same as the base is for cone, ठीक है? अब क्या किया इन्होंने कि कोन में पानी फिल किया। क्या किया? कोन में पानी फिल किया और उसको उठाकर इसमें डाल दिया, सिलेंडर में, ठीक है?
हाँ जी सर। So what they have found that 3 times जब उन्होंने किया तो सिलेंडर में पानी पूरा फिल हो गया। क्या हो गया? सिलेंडर में पूरा पानी फिल हो गया। Right. So what we understood from here that volume of cylinder is 3 times the volume of cone. 3 times the volume of cone. Okay. सिंपल सी बात है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आइसक्रीम खाने जाते हो? Right sir. आइसक्रीम वाला स्कूप निकालता है। Right sir. तो आपका मान लो कि एक पूरा बाउल जो आती है वो 4 स्कूप्स में भर जाता है। तो एक स्कूप का वॉल्यूम क्या हो गया? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉल। Yes sir. तो सिमिलरली यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। हम कोन में पानी फिल करके सिलेंडर में पोर कर देते हैं। तो हमने क्या देखा कि 3 times of cone is giving me the volume of cylinder, right? क्योंकि 1/3 है इसलिए 3 times ले रहा है। नहीं, ये पता नहीं था ना, ये तो बाद में मालूम चला। हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया। हमने पहले क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। After doing this experiment, what we got it here that the volume of cone is 1/3 of, I'm writing here, volume of cone is 1/3 of volume of cylinder. Okay? So from here we can write pi r square h. तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बन जाएगा अब हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ कोन बन जाएगा हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h. कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, नोट कीजिए। अब समझ आया ये फॉर्मूला कहाँ से आया? यस सर। Just noting it down, sir. सर फिगर और राइट फिगर तो पहले ही ड्रॉ कर रखी है। Done, sir. Noted it down. Okay, so volume of cone is clear with you? Yes sir. Okay, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, that we call curved surface area. That we call what? Curved surface area. That is also important. और देखो ये सब जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ और मैं इतना लेंदी कर रहा हूँ, रीजन बिहाइंड कॉन्सेप्ट सीखना है। फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है। कॉन्सेप्ट आएगा ना तो आप बना ले जाओगे। ठीक है? क्लियर है? यस सर। हाँ, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। क्लियर? यस सर। ओके, सो गिव मी अ मोमेंट। ओके सर। सॉरी, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। आई नीड टू टेक द पिक्चर। कहाँ गया यार? Yes, I got it. Yeah, giving you. Okay. अब देखो हमारे पास कोन था। क्या था हमारे पास? कोन। हमने कोन को कट किया। बर्थडे कैप्स कैसे आप फाड़ देते हो? कभी कभी किया है? कभी नहीं सर। नहीं, बर्थडे कैप्स फाड़ा नहीं है? नहीं। बहुत अच्छे बच्चे हो। ओके,
ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, सपोज इट बर्थडे कैप था, बर्थडे कैप को आपने कहीं से ऊपर से ऐसे कट कर दिया। क्या किया आपने? ऊपर से कट कर दिया। कट करके इसको ओपन कर दिया, राइट? तो ओपन करोगे तो किस तरह का शेप मिलेगा आपको? विल यू गेट अ शेप लाइक अ सेक्टर? Yes, sir. विल यू गेट द शेप लाइक अ सेक्टर और नॉट? टेल मी। Yes, I will get a shape like sector सेक्टर, of a circle, right? राइट, ओके। अब दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सेक्टर आपको मिल गया, राइट? Right, sir. इसका एरिया कैसे निकालोगे? Okay. So हम सेक्टर मिलने के बाद पूरा एक सर्कल ड्रॉ करके उसका थीटा मान के एंगल। यहाँ थीटा तो दिया हुआ नहीं है, थीटा नहीं है हमारे पास। Okay. हाँ बोलिए बोलिए। सर फिर कोई आई डोंट नो द सर कोई एंगल होता होगा कोन का। Okay, I will let there you know. should be an angle at the No, top. एक फॉर्मूला और बता देता हूँ आपको। जब आपको एंगल नहीं गिवन हो, एक तो मैंने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ाया था, जब आपके पास Yes. एंगल गिवन होता था तो, राइट? whenever Yes, sir. you do not have the angle and you have to find the area, you have to find the area, तो अब देखो, आप जब ओपन करोगे so this will be the length L, Yes, sir. एंड यहाँ ये वाला जो है पोर्शन, ये आपका पोर्शन हो जाएगा कर्व लाइन। क्या पोर्शन हो जाएगा? कर्व लाइन। अगर ये कर्व लाइन देखो तो ये कर्व लाइन, इफ यू सी दैट, इज इट लाइक दिस? Yes, sir. Is it like this or not? Tell me. Yes, it is, sir. It is, okay. तो अगर हमने ये सर्कल खोलकर वहां ओपन रख दिया तो ये लेंथ जो हमने यहां से अभी बनाया है, ये वाला पार्ट आई एम टॉकिंग, this length and the circle will be equal or different? It will be equal. It will be equal, right? Okay, it will be equal. तो क्या इक्वल होगा? सरकमफेरेंस इक्वल होगा या फिर क्या इक्वल होगा? सरकमफेरेंस इक्वल हो जाएगा या एरिया इक्वल होगा? यहाँ circumference equal होगा, नहीं एरिया इक्वल होगा। एरिया कैसे इक्वल होगा? लेंथ इक्वल हो रहा है ना यहाँ पे। Okay, तो circumference equal होगा, right? So that means I can say that this line is equal to circumference of circle. Can we say that? Yes, sir. Circumference of Circle. और वो क्या होता है? 2 पाई। Circumference, yeah, 2 pi, yeah, right. तो सिंपल सी बात, जब आपको एरिया निकालना हो कभी इसका, तो आप लेंथ ऑफ आर्क टाइम्स ये लेंथ कर दोगे रेडियस. दिस इज द रेडियस फॉर इट, so you will Yes, get sir. the area of sector. So here we can say the curved surface area is how much? 2 pi r, मतलब length of arc times L. L क्यों? क्योंकि L is coming as a radius for this face. Got it? Yes, sir. So आप curved surface area लिखो. Curved surface area formula हो जाएगा 2 pi r L. Okay, sir, I will just write it. Oh wait, 2 pi r L or pi r L? Wait. Oh. Let me check out. ये हो जाएगा, एक से मैं चेक लेता हूँ। Oh, okay. 2 लेंथ है ना यहाँ पे, L/2 दिखाना पड़ेगा। एक सेकेंड। Okay, sir. Pi r L, it will be pi r L. Pi r L. Yes, not 2 pi r. Final formula हो जाएगा pi r L. Surface area With all combinations. Pi r into L. Okay, sir, done. Okay. अब बात यहाँ आती है, L क्या है? बात क्या आती है यहाँ पे? L क्या है? So L is a slant height. Yes, sir. Slant height कैसे निकालेंगे हम? मालूम है कुछ? नहीं सर, slant height क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से तो नहीं निकाल सकते? Yes, you are right. You can calculate it by using the Pythagoras theorem. Is that clear? Yes, sir. Okay. So चलो हम slant height का फॉर्मूला भी यहाँ लिख देते हैं आपको.
कहाँ गया? So you can write it down here. This is your L. This is your L. और ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो. So you can say L is h square plus r square root under. Okay, sir. कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. So slant height equals to L equals root h square plus r square. I'll just note it down, sir. Pardon, what's that? I'll just note it down, sir. हाँ, note Yeah, sir, note it down. नोट कीजिए. कर लिया सर. ओके, फाइन. बस एक सेकेंड. नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया के लिए मैंने क्या बताया था आपको? Total surface area of एनी शेप. length side cube basically. Length नहीं cube, नहीं, मैं एनी शेप पूछ रहा हूँ. मैं तो किसी शेप का नाम नहीं लिया. length मैंने एक तरीका बता रखा था ना. कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम ऐड कर दो, बताया था ना. ओके ओके. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी शेप का रूल यही है कि कर्व सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम ऐड कर देंगे. राइट सर. चाहे वो कोन हो चाहे कोई भी हो. तो अब देखो, अब मैं लिखा हूं यहाँ कोन. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. सो CSA ऑफ कोन. अब कोन में टॉप सरफेस है क्या? नहीं सर. बॉटम सरफेस है. और क्या है वो? क्या है वो? What sir? बॉटम में क्या है? वी हैव अ सर्कल. Circle. तो pi r l plus area of circle will become how much? Area of circle equals to pi r square. Okay, pi r square. अब देखो यहाँ से pi r कॉमन ले सकते हैं क्या हम? जी सर. So what will be left? L plus r will be left. तो ये तीन फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको सिखाया यहाँ पे. ओके सर. हेलो. Yes. Okay, should I note it down, sir? Yes. TSA of cone is to pi r l plus r. And done, sir. Note it down. Okay, fine. चलो, बहुत बढ़िया. Give me a second. Okay, sir. बस एक मिनट होल्ड करो. Sure. एक सेकंड सर. सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 pi r h. And so volume is also 2 pi r h, right? नहीं. Volume of cylinder is pi r square h. Pi r square h. Oh, okay. Okay. Yeah. Yes, sir. Thank you. Okay. I just had a bit confusion, sir. No problem. और लिखा हुआ जो आप लिखते जो हो क्लास में, वो अब चेक हुआ करेगा. ओके सर. तो जो भी चीजें बताई जाएं आप उनको अपने नोटबुक में पक्का लिखा करो. ठीक है? ओके सर. इज इट क्लियर? यस सर.
ओके अभी एक सेकंड रुको, अभी हम चलते हैं यहाँ कोन में। होल्ड द मोमेंट। 1 2 3 Sure, sir. 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है। ये क्यों ओपन नहीं हो रहा? Yeah, I got it. Chalo. So we will work out giving you one simple problem based on it. Okay. And you should be very careful how to do it. Okay. Okay, sir. Chalo. मैं दे रहा हूँ question. Okay. This is your first question. Okay, कुछ नहीं sir. करना, सब details हैं, formula हैं, use The करो। height of a cone is 24 centimeter and the diameter of the base is 14 centimeter. Find the slant height, volume, area of the curved surface and total surface area of the cone. Okay. So volume equals to 1/3 into r into pi r square h. So what is the radius? It's 7 and height is 24. .176 centimeter cube. Now CSA equals to 22 by 7 into 7 into 24. 48 plus 45, 28 centimeter square. Slant height. So slant height formula was L equals to L L equals नहीं, to याद नहीं करो स्लैंट हाइट याद नहीं करो। सिंपल सी बात, स्लैंट हाइट हम याद क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। देखो so हमने find the देखो कोई बात नहीं, इसको P मान लो, Q मान लो, R मान लो। दिस विल बी योर हाइट, दिस विल बी योर रेडियस, हो जाएगा। हाँ जी सर। एंड दिस इज योर L, हो जाएगा। ओके सर। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स वर्क। L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। रट्टा मारने वाला विद्या नहीं यूज करना है। ओके। समझने वाला विद्या यूज करना है। ओके ठीक है। ओके तो L स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। आप पाइथागोरस में यही यूज करते हो, पाइथागोरस फॉर्मूला यही है ना। राइट सर। सो 24 into 24 equals to 576। what sir? 576। Okay. 24 का स्क्वायर। Okay. 576 plus 49 डायामीटर है। कैन यू सी? 14 इज डायामीटर। Yes sir. तो रेडियस कितना होगा? 7। हाँ, तो 14 क्यों ऐड कर रहे हो? मैंने 7 into 7 49 बोला सर। ओ ओके, मुझे लगा 14 बोल रहे हो। ओके ओके फाइन। सो 576 प्लस 49, सो दिस बिकम्स 15 का 5 7 4 11 12 और ये 6 625। राइट। सो रूट अंडर 625 और ये कितना हो जाएगा? 25। गुड 25। सो योर स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। गॉट इट? यस सर। चलो आगे बनाओ। अब इन्होंने मुझसे टीएस से मांगा। टीएस इज द लास्ट वन। Sir, L will be considered as slant height, right?
एंड मेरे को इसका स्लैंट हाइट ऑलरेडी पता चल चुका है, इसलिए मैं अलग और फिगर्स में भी वही यूज कर सकता हूँ, राइट? Yes, done. All figures are done. Okay. So the answer for the volume is 176 centimeter cube. The curved surface area is 550 centimeter square. Slant height is 25 and TSA is 4928 centimeter square. Okay. Fine, we will move. Okay. Uploading. Okay. Yeah, you can try for this one. Giving you. Can you see? Yes, sir. Go for it. Okay, sir. How many meters of cloth? 5 meter. How many meters of cloth 5 meter wide will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 7 meter and the height is 24 meter? Right. So क्या करना है इसमें? हमारे को वॉल्यूम निकालना है. Okay. और 5 इसमें उन्होंने दिया है 5 मीटर वाइड, तो हमारे को वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑफ एक सेकेंड. How many meters of cloth 5 meter wide will be required to make a conical tent? Radius of whose base is 7 and height is 24. अब सिंपल सी बात सुनो मेरी, वॉल्यूम नहीं निकालना. देखो, मैंने उसी दिन सिखाया था ना आपको कि कुछ भी बनता है तो कपड़े से बनता है. तो कपड़ा कैसे आता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में कपड़ा आता है. right, तो ये कपड़ा मिल गया किसी को, और जिसका विड्थ कितना है? विड्थ कितना है? 5 मीटर. इसका विड्थ है 5 मीटर. हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ. जब हम कपड़ा खरीदने आते हैं तो विड्थ ऑलवेज आता है फिक्स, और हम लेंथ बताते हैं कि जी हमें इतना लेंथ कपड़ा दे दो, राइट? यस सर. तो ये हो गया जी लेंथ इसका. अब सिंपल सी बात पूछना ये है, इस कपड़े से क्या बना? बताओ, इस कपड़े से क्या बना? इस कपड़े से टेंट बना एक, जिसकी हमारे को लेंथ निकालनी है. एक कोन बना. एक कोन बना. सिंपल सी बात, इस कपड़े से क्या बना जी? तो कोन बना. अब कोन में इस कपड़े से बेस बना है क्या? बेस भी बना क्या इसका? नहीं सर, बेस नहीं बना. ऊपर का टेंट बना. क्या बना सर? ऊपर का टेंट बना. ऊपर का ये पोर्शन बना. Am I right? एक सेकंड सर. बट कोई भी टेंट बनाते हुए बेस तो कपड़े में ऑलरेडी आ जाता है, क्योंकि बेस से ही तो मोड़ा जाता है. एक मिनट, टेंट में बेस हम मेजर कर लेते हैं. कभी भी आप टेंट बनाओगे तो बेस थोड़ी ना सिलते हैं. टेंट बनाते हैं तो ओके. वो कभी यहाँ गए हो, कभी घूमने जाते हो तो टेंट वेंट लगाते हैं लोग, तो नीचे थोड़ी लगाते हैं उसमें.
नीचे तो अपना और बेड या नीचे तो कोई और मैट मैट रहती है, राइट, मैट्रेस या मैट्रेस, या फिर जो आर्मी के टेंट होते हैं, आपने शायद टीवी वगैरह पे देखा होगा, नीचे तो कुछ और लगी होती है, राइट। मैं एक फिगर थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ। देखो उनका टेंट कैसा होता होगा, उनका टेंट कुछ ऐसे रहता है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, ऐसे करके टेंट रहता है, राइट। अच्छा, ये रहता है ना, ऐसे करके ऐसे करके। यस सर। तो इस टेंट में क्या, नीचे में तो वो अपना टेबल कुर्सी जो लगाना है लगाएंगे, कपड़ा तो ये है, क्लॉथ तो ऊपर है लगा हुआ है ना इधर। ओके ओके सर। तो आपको इसमें क्या करना है इस फिगर में कि CSA ऑफ कोन विल बी इक्वल्स टू दिस एरिया। यस सर। तो सिंपल सी बात मैं देखूं यहाँ पे, एरिया तो मुझे लिख दूं एरिया के लिए, लेंथ इंटू 5, यस सर। and this will be equals to what? This will be equals to the CSA of cone. Understand? और यस सर। कोन कितना बना, तो रेडियस 7, हाइट 24। तो चलो पहले CSA निकाल लो। तो आपके पास CSA के लिए चाहिए पाई आर एल, ओके राइट। सर, जस्ट अ सेकंड सर, मेरे को एक सेकंड वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी। ओके, यस सर। I will just switch on my video now. Okay. Sir, I have done my homework actually, so I should send it after the class, right? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Okay, sir, I will just find the CSA now. हाँ, CSA निकालिए इसका। Okay, sir. Okay, the CSA formula is pi r into L. So we first need to find the slant. ये राइट। So slant equals to L square equals to root h square plus r square. So the what's the radius? The radius is 7 and the height is 24. So 24 square plus 7 square is under root, and now L square is and 24 square equals to 576 plus 49. L square equals, so L square equals to 625. So the slant again equals to 25. Okay. So now CSA equals to 22 by 7 into 7 into 25. Okay. So that will make it 550. Yes, so the 550 is the slant. Sorry, CSA. 550 centimeters square. Let me check. 550 ठीक है, CSA मिल गया आपको 550, that's right, correct. Yes, sir. तो CSA मिल गया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो लेंथ तो निकालिए। right. So लेंथ निकालने के लिए CSA, एक सेकंड, लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, देखो ना इधर मैंने लिख रखा है L into 5 और ये 550 आ गया। Okay, तो L length equals to 110. Yes, length will become 110 meters. Clear? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ पे? No, sir. It was simple, right? Yes, okay, sir. Fine. चले आगे। Yes, sir. Okay. Third question. Okay, sir. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। Oh, my video is going off. Just a second. No issue.
Oh my God. Yes, sir. Now I'll just start the question. I'm switching on my video. Yes, so the question is the radius and height of a right circular cone. Right circular cone. Okay, so the right angle is the angle from the middle, right? So Mm-hmm. circular cone are in the ratio of 5:12, and its volume is 2512 cubic centimeters. Find the curved surface area and the total surface area of the cone. Use pi as 3.14. Right. And my suggestion is, इसमें already लिखा हुआ है. You can see क्या लिखा हुआ है इसमें 3.14 यूज करने के लिए. Okay. Yes, I saw that. Yeah. Okay. Okay, so the radius and the height of an volume. So volume equals to 1/3 Mm-hmm. pi r square h. So the volume is 2512 centimeter cube equals to 1/3 into 3.14 into r square into h. r square को सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 5x हाँ, you can. 5x into 12x. Hmm. So now we will write 2512 into 3 by 3.14 equals to 5 into 12 equals to 60. So 60x. So 2512 into 3 equals to और ये क्या, 7. ये वॉल्यूम है, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर है, याद रखिएगा. Yes, sir. Yes, और sir. मैं ज्यादा इंटरप्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि मैंने कंप्लीटली आप पे छोड़ रखा है, आप कैसे टैकल करते हो, क्योंकि बताता तो Okay. मैं हर बार हूँ. नहीं बनेगा तो मैं हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आपको ट्राई करना है. Yes, sir. Just a second, sir.
Yes, sir. So the CSA equals to 2288800 by 7. Oh, okay, sir. Just a second, sir. I actually took pi as 22/7, so I have to change it to 3.14. Okay, so I need to change my calculation. It will be in decimals. Into 200. Yes, so the answer is 326560. Okay. And the radius is 200 centimeter, height equals to 480 centimeter, slant height equals to 520 centimeter, and the CSA equals to 326560. एक सेकेंड, सीएसए कितना है? एक मिनट, इसमें आपको क्या क्या निकालना था? सीएसए निकालना था, राइट? यस सर। सीएसए कितना आया? 326560. एक मिनट, स्लैंट हाइट कितनी आई? स्लैंट हाइट 520. 520, अच्छा। और सब गड़बड़ कर रखा आपने इसमें, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। They have told radius and the height is what? 5:12 के फॉर्म में दे रखा है, correct? Yes sir. Okay. So radius is to height. मैं small r ले लेता हूँ, ज़्यादा better होगा। Small r is to height is given me as 5:12. So radius I will consider as 5x and height I will consider as 12x. कोई problem? No sir. Then sir we will take it as volume. Wait. Volume equals to 1/3 pi r square. Wait. 2512. This is the volume given to me. Yeah. Right? Yeah. 1/3 pi r square h. That is 2512. कोई problem? No sir. 1/3 पाई की वैल्यू कितनी ले लें हम? बोल दिया है ऑलरेडी लेने को, 3.14। r की वैल्यू 5x का स्क्वायर इनटू h जो है वो 12x है, and that is 2512. कोई problem? Oh, okay, that's the mistake I did. मैंने 5x square नहीं किया. Okay, so जो भी है, no issue. So 1/3 3.14 25x square plus times 12x. Sir 25x square क्यों होगा अगर? Alright, x square. x square होगा ना? क्यों सर? सर 5x into 5x हो तो भी right. Right, sir. 5x x into x equals to x square. X into हाँ, right. अब देखो, अब कुछ नहीं करना, x क्यूब इधर लिख दो। लिख दिया? Yes sir. 2512, ये 3 किधर चला जाएगा? Into 3 by 3.14 into 25 into 12. जरा सॉल्व करो इसको, कितना आता है? Sure sir. So 2512 times 3 will give me 7536. Divide by 3.14 and divide by 25 and divide by 12. It gives me 8. How much it gives me? 8. So if you see here, so we can write it down. मैं आगे नहीं लिख रहा. X cube is 8. So x will be how much? 2. Any problem? No sir. So हमारा radius कितना हो जाएगा? 5 into 2, that means 10. And height कितना हो जाएगा? 12 into 2, that means 24. Any problem? No sir. ये दोनों आपका गड़बड़ हो गया होगा, right? Right sir. Okay, next. Moving. अब हमको, अच्छा हाँ सॉरी, हमको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए सिंपल सी बात, हमें एल भी चाहिए। क्या चाहिए? एल भी चाहिए। तो रेडियस आया है हमें 10 और ये आया है 24। ये कितना हो जाएगा?
So इसको मान लो L. So L square is 496 wait 496 का होगा 9 स्क्वायर रूट होगा 9 576 plus 100. So this becomes 676 576 24 हाँ ठीक है प्लस 100. So 676 का क्या होता है रूट अंडर? हाँ राइट सो 676 का रूट That will give me 26. So ये Yeah. L हो गया 26. अब मैं निकालूं स्पेस बना के. So मुझे Yes, निकालना sir. है कर्व सरफेस एरिया, right? That is pi RL. So we can go for 22/7. जो मर्जी ले लो. R is 10, L is 26. Multiply करो कितना आएगा? R is 10 and L is 26. तो 260 तो यही हो गए. Into right. 3.4. So 816.4. 6.4. 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया जी. और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया भी बोल रखा है इसने. सो TSA का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट? Right. तो ये तो ऑलरेडी निकल चुका है हमारे पास. वी कैन राइट 816.4, राइट? इसको निकाल लेते हैं. सो दिस बिकम्स 3.14 और 10 का स्क्वायर कर दो. सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, ब्रैकेट्स गलत लिख दिया. प्लस इसका स्क्वायर कर दो. तो 816.4 और 3.14 इंटू 100. तो 816.4 प्लस 314 ऐड करो. 816.4. Okay. So the answer will be 113. No, just a second. 816.4, right? 816.4 plus. So what is the addition for 314, right? Yeah. Yeah. So 11304.4. क्लियर? Yes, sir. चलो तो इस तरह से समझदारी से बनाना है. ओके. Yes, sir. थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं इसमें. Okay, sir. ये चीज मैंने करा दी आपको, राइट? एक क्वेश्चन और कर लो फिर हम लोग आगे इस फेयर में चलेंगे, बिकॉज वी हैव टू डू दैट आल्सो. Okay, sir. और इस क्वेश्चन में एक मिनट रुक जाओ, मैं दे रहा हूँ. ठीक है सर. इस क्वेश्चन में गड़बड़ी मत करना, ठीक है? ओके सर. हाँ एक सेकंड, मैं बस क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको. इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, नहीं समझ आए मुझसे पूछना कि क्या हुआ सर क्वेश्चन में, फिर बनाना. पहले पढ़ो इसको अच्छे से. Okay, sir. A right circular cone is 3.6 centimeter high and the radius is 1.6 centimeter. It's measured into a circular cone, जिसका base होता है circle. So having base radius 1.2 centimeter, find its height. अच्छा इसमें क्या हो क्या रहा है बताओ, क्वेश्चन में क्या हो रहा है? Sir, इसमें एक right circular cone है, means right angle circular cone. अब उसकी हाइट 3.6 है, 3.6 सेंटीमीटर है और उसका बेस 1.6 सेंटीमीटर है. ओके. अब उसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है और सर्कुलर कोन में, मतलब उसका बेस सर्कुलर है
एंड उसकी अब हमारे को रेडियस दे रखा है, बेस रेडियस, अब उसकी हाइट फाइंड करनी है। अब हम बेसिकली हम वॉल्यूम निकाल लेंगे राइट सर्कुलर की, और वॉल्यूम से हाइट निकाल लेंगे दूसरे टाइप के। गुड 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 अंडरस्टैंडिंग। याद रखना कभी भी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ तो कौन से कौन बनाया है, राइट? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। यहाँ पे कौन से कौन बनाया, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि कहेगा क्या कि ये सिलेंडर है, क्या है ये सिलेंडर, इसको मेल्ट करके बॉल बना दिया, मेटालिक बॉल, ठीक है? अब पूछता क्या है, मेटालिक बॉल का रेडियस निकालो। जब भी याद रखो, कभी भी मेल्ट एंड रिकास्ट का मतलब आएगा मेल्ट किया गया और उसको दोबारा से बनाया गया, तो याद रखो दोनों शेप का वॉल्यूम इक्वल होता है, ऑलवेज रिमेंबर इट। दोनों शेप का वॉल्यूम इक्वल होता है, चाहे वो कोई भी शेप हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास एक मेटालिक क्यूबॉइड है, क्या है मेरे पास? मेटालिक। इससे मैं कोन बनाने लगा, क्या मैंने बनाया? कोन। तो इसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। ये कब होता है? मेल्टेड एंड रिकास्ट, बेंड के केस में नहीं, नॉट इन द बेंड। वॉल्यूम में जब भी बात करते हैं तो मेल्टेड एंड रिकास्ट की बात होगी, तो वॉल्यूम ऑफ दिस वुड बी वॉल्यूम ऑफ दिस, सेम होगा। ये बात अपने माइंड में बिठा लेना ऑलवेज, ठीक है? ओके सर। हाँ चलो, अभी तो आपने अच्छा किया कि वॉल्यूम निकाल के बता दोगे, दैट इज गुड। Okay, go ahead. Okay, sir. So volume will be 202.752 by 221. करो करो, Just 75.752 को हम 0.75 ही ले लेते हैं। मुझे फाइनल हाइट का आंसर चाहिए आपसे। ओके सर। बस अपने नोटबुक पे लिखो, अच्छा स्टेप वाइज लिखना है, ठीक है? क्विक नहीं, सब कुछ स्टेप वाइज। वॉल्यूम ये हुआ, जैसे मैं लिखता हूँ, देखो कहाँ गया, मैंने कहाँ लिखा, देखो मैंने हर चीज स्टेप में लिखी है, कैन यू सी दैट? यस सर। सो यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ भी देखो, इस पे भी मैंने सब कुछ स्टेप में लिखा है, राइट? हाँ, मेरे पास स्पेस नहीं होता इसलिए मैं राइट में लिखता हूँ, आपके नोटबुक में स्पेस है, आप नीचे लिखते चले जाओ, ठीक है? लेकिन हर चीज स्टेप वाइज लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे। देखो यहाँ देखो कैसे मैंने लिखा, मैंने यहाँ सरफेस एरिया, फिर फॉर्मूला, फिर वैल्यूज पुट किए, फिर सॉल्व किया, डायरेक्टली नहीं लिखा। क्लियर है? तो ये चीज ऑलवेज याद रखना ना, उसका टॉपिक का नाम लिखो, मतलब क्या निकालना है, जैसे वॉल्यूम तो वॉल्यूम लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे ना। हाँ यस, वैल्यूज पुट करेंगे, देन जो भी कटिम कुटिम, जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो करना है, तो उसके बाद देखेंगे। क्लियर? यस सर। हाँ, ये स्टेप्स याद रखेंगे ऑलवेज। चलिए करिए इसको। कर रहा हूँ सर। Okay, sir. So to be precise, the answer is 6.4. अगर हम सर 202.752 लेते हैं, एग्जैक्ट नंबर लेते हैं, तब आंसर 6.5 है। हेलो? यस यस। So the final answer is 6.4. Height equals to 6.4. Okay, 6.4, right, good. Okay. Just a second, sir. Can I drink water? Yes, yes.
Yes, sir. Done. Okay. Okay, fine. Let's go. Giving other one. Oh no, not giving. Sphere. Right. Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sphere. That I was on mute. So. No problem. We are going to do a sphere now. Sphere means laddu. Sphere means laddu, you can see here. Okay. Laddu. You know laddu? Okay, I thought you said square. No, square nahi, sphere, sphere. Like just a ball, like a cricket ball. Ball, right. अब इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखो, फ्लैट सरफेस कहीं नहीं मिल दिख रहा होगा, right? Yes, sir. So everywhere is the radius, everywhere is the radius, everywhere is the radius. कहीं भी कुछ भी draw करो, so it will give you the radius, right? Yes, sir. So ये है हमारा sphere and so in इस sphere में सिर्फ दो चीजें आती हैं. एक आता है वॉल्यूम और दूसरा आता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. प्लीज मेक अ Okay. नोट ऑफ इट. प्लीज मेक Should I note it down, sir? यस. Okay, okay, okay. Done, sir. Done? Okay. Yes, sir. Fine. Give me a moment. Sure, sir. इसमें मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है. ओके, आई एम गिविंग वेरी सिंपल वन. आप इसको बना सकते हो बहुत आसानी से. ठीक है. गिविंग यू. कैन यू हियर मी? Of course, yes, sir. Of या, course. इसमें कुछ भी नहीं है. वॉल्यूम मतलब फॉर्मूला पुट करो, सॉल्यूशन आ जाएगा. कोई समझाने वाली बात नहीं है. जहां समझाना है वहां मैं अभी समझाऊंगा, बट उससे पहले आप एक क्वेश्चन कर लो. दैट विल बी बेटर फॉर यू. Okay, sir. Do this one. Uploading. Apply the formula. फॉर्मूला याद है? 4/3 pi r cube. Yeah. Find the surface area of a square. यस. Yeah. अब इसमें वॉल्यूम दे दिया है, तो आपको क्या चाहिए? समझ गया सर, समझ गया. हमारे को इसका सबसे पहले तो रेडियस निकालना है. राइट, रेडियस निकालना है. करेक्ट. Okay. 4851. Enter 3 equals.
Okay, so cube root of 165.375. Okay. 165.375. Okay. क्या हुआ? सर इसका स्क्वायर रूट बहुत लंबा आ रहा है. हाँ, चलो मैं हेल्प करता हूँ. ओके. 5.488. सॉरी, क्यूब रूट. क्यूब वॉल्यूम रूट. ये है, वॉल्यूम ये है. राइट सर. राइट. ओके. So, first of all, what I will do with you, 4/3. अच्छा, मैं स्टेप भी लिख देता हूँ. गिव मी अ सेकंड. इसको सॉल्व करने के लिए लिखना होगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4851. कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यूब, that is equals to 4851. So from here, if I write it down, so I can write 4851. ये 3 ऊपर आ जाएगा, right? 4 नीचे आएगा. अच्छा, पाई की जगह हम क्या लेंगे? हम 22/7 लेते हैं. So 22 यहाँ आ जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा. राइट सर. चलो, अब इतना हो गया. अब सर तो वेट 22 से कैंसिल करते हैं. चलो उसको. तो 220.5. एक मिनट रुको तो सही. 4851 को 11 से पहले डिवाइड दे देता हूँ मैं. 441. 11 से क्यों सर? इसको 11 से देंगे तो ये 2 आ जाएगा. ओके ओके ओके. मेरे लिए इजी हो जाएगा फिर. राइट. अच्छा, अब देखो यहाँ कमाल. जैसे ही 441 आया, मेरे दिमाग में झटका लगा. कैसे दिखाता हूँ. देखो, क्योंकि मुझे क्यूबिंग करना था. क्या करना था मुझे? क्यूबिंग. मेरे दिमाग में जब 441 जैसे ही नंबर दिखा, मेरे दिमाग में क्विकली आया कि 441 तो जी 21 का स्क्वायर होता है. क्या होता है? 21 का स्क्वायर. तो मैं एक सेकंड, तो मैं 21 टाइम्स 441 को लिख दूं और ये 21 बच जाएगा. इसको लिख दूं. यस सर. नीचे क्या बच जाएगा? 2 टाइम्स आ गया. सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 21/2 का क्यूब लिख सकते हैं. यस सर. एक्सपोनेंट पढ़ाया था. दोनों की पावर सेम, तो बेसिस मस्ट बी काट सकते हैं. इक्वल, राइट? यस सर. यहाँ से रेडियस क्या हो गया जी? 21/2 सेंटीमीटर इज द रेडियस. कोई प्रॉब्लम? 10.5. हाँ, 10.5 कर लो, 21/2 कर लो, आपकी मर्जी. 10.5. ओके ओके. तो मैं एक चीज पे गलत जा रहा था. मैं उसको लंबी कैलकुलेशन में लेके जा रहा था जो प्रॉब्लमेटिक थी. हाँ, तो ऐसे टैकल करना है. ठीक है. अब दूसरी चीज, सरफेस एरिया निकालना है. क्या निकालना है? सरफेस एरिया. सो सरफेस एरिया में हमको इसमें मालूम है एक ही सरफेस एरिया होता है, एंड दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? सो 4 पाई के जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 21/2 का होल स्क्वायर. सो 4 into 22/7 into 21/2, 21/2. Can we see that? Yes sir. ये देखो, ये 4 इन दोनों 2 से कैंसिल कर दें. हाँ जी सर. और ये 7 और 21 कैंसिल कर दे 3 से. Yes, तो बच sir. जाएगा कितना? 22 times 3 times 21. Can you multiply? 66 times 21. चलो मैं इतना क्लोज ले आया. करो मल्टीप्लाई. Oh, okay. 66 into 21 equals to, just a second, 1386. yeah, 1386. क्लियर? Yes sir. चलो, ये कॉन्सेप्ट सीख लिया. Yes sir. चलो, इसमें एक कॉन्सेप्ट अब नया चीज बताता हूँ.
बन गया? पेज चेंज करें? यस सर। ओ राइट सर, नोट डाउन करना है अभी। हाँ हाँ, तो करो करो जल्दी। अभी ये पूरा नोट डाउन करना है। तो अभी तक लिख क्या रहे थे? ओ अभी तक मैं सर कैलकुलेशंस कर रहा था सर। ओके ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो स्टेप वाइज। या डन सर, नोटेड डाउन ऑल। ओके, गिविंग अदर क्वेश्चन। ओके सर। Sir, can you just give me a second? My laptop is getting discharged. I need to connect the charging. नो प्रॉब्लम। Yes, sir, done. Just a second, switching on video. Uh, चले? yes, sir, sure. ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपलोडेड। फर्स्ट How many spherical bullets can be made out of a solid cube of lead whose edge measures 44 centimeters, each bullet being 4 centimeter in diameter? So spherical bullets. So it's not a point bullet, it's just a spare bullet. हाँ, यू नो बच्चे लोग यूज करते हैं, यू नो वर्ड कंचा। राइट बलून्स के लिए फेयर्स में होता है, राइट। हाँ यस में जो यस गन्स यस, होती है। राइट। और दूसरा अगर नहीं, हाँ वो भी है। फिर आपने देखो कंचे देखे, कंचे शीशे वाले, यस, मार्बल्स। मार्बल्स, राइट। वैसे वैसे गोल गोल छोटे छोटे रहते हैं, बट दे विल बी लेड। क्या है मटेरियल? लेड मटेरियल है, राइट। अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं। अभी मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया था, स्फेरिकल बुलेट कैन बी मेड किससे बन रहा है? सॉलिड क्यूब से। किससे बना? सॉलिड क्यूब से। तो दैट मींस दिस इज द क्यूब, राइट। और ये 44, तो 44 इससे इससे क्या बनाया इसने? बॉल। 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी सेंटीमीटर है। अच्छा ये भी याद रखना, यूनिट दोनों में क्या इस्तेमाल किया। कभी कभी क्वेश्चन बहुत तेज होता है और क्या करते हैं एग्जामिनर की यूनिट बदल देते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट द यूनिट। सो यूनिट इस क्वेश्चन में तो सेम है। सो हमारे पास इसके लिए तो हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे उसके क्यों सरफेस एरिया क्यों? क्या जरूरत है? वॉल्यूम तो उसके अंदर का मास होगा, राइट। सरफेस एरिया उसका एरिया जो उसने लिया है, राइट। एरिया से क्यों होगा? इसको मेल्ट करेंगे तभी तो बुलेट बनाएंगे। ओके, मेल्ट करने के बाद मुझे लगा था इससे कट करके बनाएंगे। कट करेंगे तो कॉर्नर पे बुलेट कैसे बनेगा? स्फेरिकल। ओके सो वॉल्यूम ही होगा, राइट। और अंदर में बहुत सारी चीजें वेस्टेज मटेरियल। आप सही हो, वैसे भी बनता है, यू आर राइट, बट देयर विल बी सम वेस्टेज। इसमें कुछ वेस्टेज बताया क्या मुझे? नहीं सर, इसमें बताया गया कि सारा यूज किया गया है, राइट। लाइक बेसिकली कुछ भी नहीं बताया गया, तो मतलब सारा ही यूज किया गया। करेक्ट।
डाया इज 4, सो रेडियस इज 2। अब सिंपल दूसरी चीज ध्यान दो जरा, इसमें क्या एक ही बॉल बने हैं क्या? नहीं, बहुत सारे बॉल्स बने हैं, इसलिए हमारे को उसका स्क्वायर का वॉल्यूम लेके उससे डिवाइड करना होगा बॉल का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, स्क्वायर नहीं है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी ऑलराइट, इक्वल्स क्यूब। टू नंबर ऑफ बुलेट्स टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन बुलेट। याद आया दीवार वाला केस, ईंट वाला? यस सर, यस सर। सेम वैसे ही। तो अब एक काम करो, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं, अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने में समझदारी क्या करनी है यहाँ पे, देखो मैं समझदारी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। ओके सर। नंबर ऑफ बुलेट निकालना है, राइट? यस सर। तो नंबर ऑफ बुलेट जो निकालना है उसमें हो जाएगा नंबर ऑफ बुलेट, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बुलेट। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, समझ 32 इंटू वेट समझदारी क्या करनी है वो मैं बता रहा हूँ अभी। लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम अलग निकालते हैं, वो अलग निकाला फिर डिवाइड किया। बात तो सही है, बात तो सही है, बट कैन वी राइट इन दिस फॉर्म? यस वी कैन सर। 4/3 pi r cube. R cube means 2 times 2 times 2, right? यस सर। अगर मैं इसको आगे लिखूं और तो ये 44 44 44 और 3 और 7 ऊपर ले आओ, नीचे बच जाएगा 4 22 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो मैंने किस चीज से बचाया आपको मालूम है? जो वो ऊपर में इनको आप मल्टीप्लाई करके नंबर लिखते, फिर इनको सॉल्व करके नंबर लिखते, फिर डिवाइड, सबसे बचा लिया मैंने। ओके ओके ओके। अरे मैंने वेरी अभी वॉल्यूम सर, इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ बुलेट भी निकाल लिया, राइट? नहीं तो क्यों निकालें, हम नहीं निकालेंगे ना। अब देखो यहीं से सब कैंसिल हो जाएगा। ओके, मैंने अभी वॉल्यूम ऑफ बुलेट निकाल दिया। अब आपने वही गलती करी ना, मेहनत ज्यादा कर लिया, मेहनत ज्यादा किया। ज्यादा कर दिया। आपने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब अलग से निकाला, वॉल्यूम ऑफ बुलेट अलग से निकाला, फिर डिवाइड दे रहे हो, राइट? यस सर। मैंने देखो कोई कैलकुलेशन ही नहीं की यहाँ पे, की क्या कोई कैलकुलेशन अभी तक? नहीं सर, बस आपने नंबर सिर्फ लेके आए। उसको सिंपलीफाई फॉर्म में अब देखो कैंसलिंग, ये गया 2 से, 2 ये गया का 2 2 बाद में से, देगा। ये गया 11 और ये गया फिर इससे, तो ये आ जाएगा 22 और ये गया तो ये 11। अब मेरे पास देखो क्या बच गया, 11 11 और 21, सो 11 11 इज 121 टाइम्स 21। एक सिंपल सा कैलकुलेशन बचा, और मैं अगर अकेला होता तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेता, राइट? बट आपके साथ हैं तो थोड़ा सा स्लो में चल रहा हूं। So answer will become 2541 bullets. कितने बुलेट्स हो गए? 2541। अच्छा, ओके, सो मतलब बेसिकली जो मेंट, जैसे मैं पहले कर रहा था सरफेस एरिया निकाल के, वो गलत इसलिए था क्योंकि मैंने बोला कि उन्होंने कॉर्नर्स को भी मेल्ट करके बॉल में बना दिया। राइट। सो देयर वाज नो वेस्टेज, क्योंकि जो वेस्टेज थी एक्स्ट्रा उसको उन्होंने और बॉल की फॉर्म में कर दिया। और याद रखना कभी भी सॉलिड की बात करता हो और उसमें वेस्टेज ऐसे कुछ डायरेक्शन नहीं है हमारे पास कि कैसे बनाया, तो ऑलवेज मेल्ट करके ही बनाएगा, क्योंकि सॉलिड को किससे काटोगे? मशीनिंग कराओगे, पूरा दिन बीत जाएगा, एक बॉल बनाने में पूरा दिन बीत जाएगा। डू यू नो दैट? यस सर। मान लो मैं एक बड़ा सा पत्थर लेके आता हूँ, बोलता हूँ ये लो जी पत्थर, इसको कट करो हाथ से, या मशीनिंग भी कराओगे तो ना पूरा दिन निकल जाता है मशीनिंग कराने में। राइट सर, क्योंकि वो इवन शेप में करेगा, इवन शेप से वो छोटा करेगा। हाँ ठीक है, इट विल टेक टू मच कॉस्ट। सिंपल, गला दो और छोटे छोटे बॉल्स निकाल लो मेल्ट कास्टिंग में, राइट? So that will be easier for us. Do you clear? Yes sir. Okay. चलो एक क्वेश्चन और हम करते हैं यहाँ पे। अच्छा ये चीज चलो सिखा दी मैंने, एक सेकेंड, और एक चीज सिखानी है मुझे। यस, एक क्वेश्चन और है, एक सेकेंड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Okay sir.
Can you The read that? diameter of a copper sphere is 6 centimeters. The sphere is melted and drawn into a long wire of uniform circular cross section. If the length of the wire is 36 centimeter, find its radius. ओके सर, सो क्या समझ मतलब रहे सर ये क्वेश्चन मीन करता है कि एक कॉपर स्क्वायर है, कॉपर से बना हुआ स्क्वायर है, हैं? उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। अब वो स्क्वायर को उन्होंने मेल्ट करके उसको एक बहुत लंबी वायर में बना दिया। उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मतलब एक यूनिफॉर्म एरिया में मींस 2 मीटर्स के गैप में परमानेंट हर 2 मीटर्स के गैप में एक क्रॉस सेक्शन है, एज एन एग्जांपल। नहीं 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 नहीं, कॉपर स्फेयर है, मतलब कोई स्फेयर है, राइट? उसको मेल्ट करके लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्म क्रॉस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्या है मैं बता रहा हूँ। ओके सर, एग्जाम्पल लो, मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, आपको ना फोटो दिखाऊंगा तो क्लियर होगा। गिव मी सेकेंड। ओके एक सेकेंड बस, मैं एक आपको फोटो दिखा देता हूँ। यस, हाँ जी, मिल गया। ओहो, ये क्यों बीच में आ रहा है? एक सेकेंड बस, ले लिया। कॉपी और नेक्स्ट पेज में पेस्ट। हाँ जी, कुछ दिख रहा है आपको? यस सर। क्या है ये? सर एक स्टील रॉड है। ये रॉड है, राइट? ये रॉड कैसे बनता है मालूम है? स्टील को मेल्ट करके, स्टील के बड़े बड़े पीसेस को मेल्ट करके एक शेप में लाके। राइट, करेक्ट। एक शेप में लाके, और इसको रोलिंग प्रोसेस बोलते हैं। रोलिंग प्रोसेस करा के और इसको गोल करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में क्या है, कहता है जी कि हमारे क्वेश्चन में एक स्फीयर है, बड़ा सा गोला, राइट? उसको हम मेल्ट करेंगे और लॉन्ग वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब लॉन्ग वायर जी, इसको, ये तो बहुत मोटा है ना, क्या है ये? बहुत मोटा है, मींस इसका अगर डाया देखो, इट विल बी मोर, राइट? लेकिन अगर हम इसको डायमीटर कुछ 5 समथिंग 8 समथिंग होगा, छोटा सा कर दें, राइट? तो इट विल बिकम अ वायर लाइक दैट, और वो भी यूनिफॉर्म हो जाएगा, राइट? और नहीं तो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, क्योंकि रियल चीज होना जरूरी है। जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड। यस, आई गॉट इट। आपने ये शायद देखा भी हो और घर पे इस्तेमाल भी किया होगा कभी, क्योंकि हम इंडियंस हैं, जुगाड़। ओके, ये देखा है कहीं? जी सर। क्या है ये? स्टील वायर। स्टील वायर, घर में कभी कभी कपड़े उपड़े सुखाने के लिए हम घरों में बांधते थे, इंडिया में देखा होगा बहुत घरों में। यस सर, बालकनीज में। करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट। अब अगर ये तो गोल गोल कर दिया ना इसने, लेकिन अगर इसको स्ट्रेट करके देखोगे, इट विल बी लाइक दिस, स्ट्रेट, करेक्ट? और ये देखो, ये पॉइंट एकदम पतला सा पॉइंट है यहाँ पे, राइट? जो स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग, तो ये हल्का थिक भी तो है, इट्स लाइक दिस। It's a bit thick. It's a wire. That's why it's a wire. दैट इज द रीजन इट्स अ वायर। ये पतला है, और ये जो रॉड मैंने दिखाया था, ये थोड़ा सा मोटा है, इसको रॉड बोलते हैं। तो कभी कभी रॉड भी बना देगा या वायर बना देगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम इसको क्या मानेंगे? सिलेंडर मानेंगे। क्या मानेंगे? सिलेंडर, पतला सिलेंडर, पतला सा, लंबा सा। जैसे 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 एग्जांपल लो, स्ट्रॉ कैसे है? स्ट्रॉ पतला लंबा सिलेंडर है, जिससे हम लोग कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ पीते हैं, याद है? कोल्ड ड्रिंक में डाल के पीते हैं। यस सर। हाँ, सेम चीज। अब सिंपल वही चीज मान लो कि ये पतला सा है, लंबा सा है, और उसकी लेंथ कितनी दे दी है? 36 सेंटीमीटर। तो ये जी हो गया जी मेरा वायर, और ये लंबा सा हो गया, ये इसको मान लिया हमने 36 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया जी? सिलेंडर हो गया।
Yes, अब sir. दोनों का क्या सेम हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ दिस वुड बी वॉल्यूम ऑफ दिस, इक्वल होगा, राइट? Yes, sir. तो चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, 4/3 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है जी? डाया है 6, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3। Yes, sir. 3 का क्यूब, कोई प्रॉब्लम? Nice, sir. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा जी? Volume of cylinder equals to 2 pi r square, 2 pi r h. पाई आर स्क्वायर एच। Sorry, pi r square h. पाई आर मुझे नहीं मालूम, हाइट मुझे मालूम है, कोई दिक्कत? Nice, sir. So 22/7 into r square. एक सेकेंड, दोनों साइड पाई पाई है, Right, so pi cancel. कैंसल। Okay. 4/3, 3 और ये 36 किधर चला जाएगा? नीचे। Yes, sir. तो चलो 1 3 से इसको उड़ा दिया, और बाकी के 3 से 12 बन गया। अब इसको उड़ा दें तो क्या जाएगा? 9 9 3 इसको उड़ा दें 3 का जाए। हाँ जी सर। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? आर स्क्वायर है 1, सो आर विल बी 1। गॉट इट? यस सर। तो हमारा ये जो स्टील का वायर बना उसका रेडियस क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके सर, शुड आई नोट इट डाउन नाउ? यस यस, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिखा है, यू विल राइट डाउन एवरी फॉर्मूलाज के साथ स्टेप वाइज। और देखो मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, जो आप बेसिक कैलकुलेशंस करते हो ना कि इसका वॉल्यूम निकालो फिर इसका वॉल्यूम, क्यों, जरूरत क्या है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, राइट? ओके सर। तो थोड़ा ऐसे भी सीखो, क्योंकि उसमें क्या है, टाइम बचता है हमारा, राइट? चलो नोट करो जल्दी से। ओके सर। अच्छा हाँ, स्कूल खुल गया आपका? हाँ जी सर, आज पहला दिन सर। कैसा रहा? इट वाज रियली गुड सर। रियली गुड। तो फ्रेंड्स वही हैं, पुराने वाले हैं कि नए बने कुछ? नहीं बने सर, शफल हो गई क्लास। शफल हो गई क्लास, ओके। यस सर, तो हो गया, नोट डाउन कर लिया। ओके ठीक है, अच्छी बात है। और अभी इसके बाद क्या करते हो? अभी क्लास खत्म होने के बाद क्या करते हैं आप? क्लास खत्म होने के बाद हमारे को नेक्स्ट क्लास के लिए अगले रूम में जाना होता है। नहीं अब भी नहीं, स्कूल में ना?